So this is the basic concept of parabola. Okay, that you have a fixed line called directrix, and this point, any point P, its distance from focus is equal to the distance from directrix. These two distances are equal. Okay. Now, if you draw a perpendicular on the axis which passes through the focus, draw a perpendicular from the axis which passes through the focus. So it will be like this. So let's say this is Q and this is Q dash. So this line Q dash, Q dash, this is called latus rectum. This line is called latus rectum. Q dash. What is Q dash? It is a perpendicular on the axis of parabola. This line Q dash is perpendicular to the axis of parabola and it passes through the focus. What is the perpendicular point? Focus is the perpendicular point. Okay, it passes through the focus and it is perpendicular. So this is called latus rectum. Okay, so by symmetry, this, if this point is S, focus is S, then SQ dash is equal to equal SQ. to SQ by symmetry, because it is symmetrical about its axis. Parabola is symmetrical about its axis. Okay, now if this length is A, then by calculation we have got that this length is 2A and this length is also 2A. Okay, this can be derived by calculation. It is not very difficult, but you have to remember this, that this length is 2A, means this is equal to 2A. Okay, so general question which is frequently asked is length of latus rectum. Length of latus rectum. So what is the length of latus rectum? It is 4A. Q dash. So Q dash is equal to 4A. Okay. So this is the what you learned today. What is latus rectum and what is the length of latus rectum? Okay. So this is the final topic of this parabola, and we'll do the exercises after this. तो पैराबोला में कितनी चीजें, मेनली दो तीन चीजें हैं, ज्यादा नहीं है. मेन थिंग इज दैट condition of parabola. Condition of parabola is PS is equal to PM or E is equal to 1. Okay, what is E? E or eccentricity is PS by PM. Okay, so this is the condition of parabola which is equal to 1. So now we'll do some questions. So question is same. Let's do yesterday's question, but today you have to find out latus rectum, length of latus rectum. Y square minus 4y minus 2x minus 8 is equal to 0. So this is the parabola. प्रभु जी नाम क्या बोला? लेटस
latus rectum. Okay. Latus rectum. So you have to find length of latus rectum. So length of latus rectum is 4a. And what is a? A is distance of vertex from focus. A is distance of vertex from focus. So if this is a parabola, then this is called vertex, and if you draw this axis, then this is focus. Okay, so this distance is called A, and the length of latus rectum is 4 times this distance. 4 times this distance, that is 4a. Okay, so now first of all you convert it into whole square so that we can bring it into standard form. So here you see y has a square, so we'll make y into whole square. So what will be the formula? Y minus 2 2 whole whole square. square So we equals have to added plus 4. Okay, yes, and here is minus 8. minus 4 करेंगे So minus, you have to subtract minus 4. minus 4 So minus 4 minus 2x minus 8 equal to equal to 0. 0 So y minus 2 whole square whole square equal is to equal 2x to 2x plus 12 2x plus 12. 2x plus 12, is it correct? हाँ यही होगा भाई Okay. So y minus 2 whole square is equal to 2 common common x plus x 6 plus 6. So this is the equation of parabola. So अब इससे देख के क्या है? What is the focus? So first tell what is the vertex? नहीं प्रभु जी, हमें तो ए निकालना है ना प्रभु जी नहीं, पर मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ. What is the vertex? वर्टेक्स हो गया प्रभु जी -6,2 Vertex हो गया -6,2. यस, तो कैसे निकालते हैं? ये तुम्हारा देखो शिफ्टिंग कहाँ हुई है? 2 यूनिट y में शिफ्टिंग है और -6 यूनिट, क्योंकि x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 को 0 रखो तो x इक्वल टू -6. ओके, सो -6 यूनिट x में हुई है, तो तुम्हारा वर्टेक्स का पॉइंट हो गया -6,2. एंड नाउ 4a इज इक्वल टू कितना है? 2 2. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम डायरेक्टली आ गई, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती? 4a. ठीक है, तो 4a इज इक्वल टू 2. So your answer is 2. Length of latus rectum is 2 units. So another question is, find the equation of parabola whose focus is 1 comma -1. Okay, and vertex is 2 comma 1. So you have to find the equation of this parabola. Focus is 1 comma 1, 1 comma -1, and vertex is 2 comma 1. So how will you do it? फोकस दिया है और वर्टेक्स दिया है, कैसे करोगे? तो निकालना क्या है प्रभु जी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अच्छा ये फोकस है एस और ओ उसका वो है वर्टेक्स. फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो प्रभु जी पैराबोला पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं एच कॉमा. पैराबोला पे ठीक है. ओके, लेट
P H कॉमा K। फिर तो प्रभु जी जो एस और ओ में जो डिस्टेंस है वो एच एच कॉमा पी में, और जो मतलब ओ में डिस्टेंस का डबल है। P में और O में जो डिस्टेंस है, हाँ वो एस और ओ का डबल है ना, 2a होता है ना वो। मतलब प्रभु जी हम एच कॉमा के मतलब उस पॉइंट को मानेंगे जो परपेंडिकुलर होके जा रहा है फोकस से। हाँ मान लो ये तुम्हारा पॉइंट फोकस, ये फोकस है 1, -1 और ये वर्टेक्स है 2, 1। ठीक है। फिर प्रभु जी ये अभी सिखाया था ना कि ये फोकस से होके जाता है परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर तुम्हारा फोकस नहीं, परपेंडिकुलर तो बहुत सारे हैं। देखो एक तो ऐसे ही मतलब एक परपेंडिकुलर ड्राई, परपेंडिकुलर जो वो नहीं तो जो लेटस फोकस से रेक्टम होके की बात जाता हो है। रही थी। हाँ तो मतलब उसकी लेंथ फोकस से 2a हो जाएगी ना। तो हम उस वाले पॉइंट को जो उस पे पैराबोला पे जो ऊपर की तरफ से एच कॉमा के मान लेंगे। नहीं नहीं, किसकी लेंथ 2a हो जाएगी? जैसे ये जो हमने जो परपेंडिकुलर बनाया है उसका जो ऊपर वाला जो वहाँ पे मतलब ये पैराबोला और उसमें इंटरसेक्शन हो रहा है नॉर्मल में, उस पॉइंट को पी मान लेते हैं। ठीक तो है तो पी नहीं, तो में ये हमको है। ये तो तुम्हारा एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया ना, तुमको जनरल पॉइंट लेना है। अगर यहाँ पे पॉइंट होगा तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना। जब पैराबोला के इक्वेशन की बात आती है तब तुमको जनरल पॉइंट लेना है। ये तो एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है, तो वो पैराबोला की कंप्लीट इक्वेशन नहीं होगी। वो केवल यही पॉइंट सेटिस्फाई कर पाएगा। तुमको तो जनरल कहीं पे भी लेना है पॉइंट, तभी तो इक्वेशन तो आएगी। हाँ तो फिर प्रभु जी एच कॉमा के कॉमन पॉइंट ले लेते हैं तो इन दोनों में डिस्टेंस होगा वो ए हो जाएगा। किस में एस और डिफरेंस हो जाएगा? एस और ओ में जो मतलब दूरी मान है। लो ये पॉइंट तुमने ले लिया एच कॉमा के। हम कुछ भी ले लिया। फिर तो तो प्रभु जी ये जो एस और ओ के बीच में डिस्टेंस है वो ए है ना। एस और ओ के बीच में डिस्टेंस ए है। ठीक है। और जो एस और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है और जो डायरेक्ट्रिक्स और वो पॉइंट में डिस्टेंस है वो बराबर है। और एस हाँ की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी 2a है। नहीं, एस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस 2a है। ठीक है। मतलब ये जो एस और फोकस से मतलब एस और ओ के बीच से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे फिर 2a उसे बना देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू तुमने निकाल ली एस और ओ से। ठीक है। हाँ फिर ये एक ही आ जाएगी प्रभु जी। और फिर ये जो पॉइंट लिया एच कॉमा के उसकी दूरी डायरेक्ट्रिक्स से मतलब बराबर होगी। तो ये डायरेक्ट्रिक्स से दूरी कैसे निकालोगे तुम? वो तो प्रभु जी हमने ए निकाल लिया तो मतलब उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे ना। हाँ कैसे निकालोगे? ओके। अरे हमें 1, -1 कोई पॉइंट पता है और उसकी दूरी पता है तो निकाल सकते हैं ना इक्वेशन से। मतलब उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। बताओ कैसे निकलेगा, टेल मी। कैसे निकलेगा? ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन भी नहीं है तो निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो जनरल है। Okay, तो so सिग्मा ऑफ I'll tell ओरिजिन के you now. लिए See, सिग्मा ऑफ ओरिजिन। first thing is that this directrix is perpendicular to axis. ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स मान लो इसको ऐसे नहीं बनाते हैं। I will make it in general form. So general form is like this.
this is your axis and this is your डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, and this is your parabola. ओके अब तुमको फोकस कितना दिया हुआ था? 1, -1 1, -1 और वर्टेक्स दिया हुआ था कितना? 2, 1 2, 1. Okay, now this point, if this point is let's say S dash, this point is O and this point is S, then O is midpoint of S and S dash. हाँ, इज इट क्लियर? O is, क्योंकि मिड पॉइंट हो जाएगा ना, S और S डैश का मिड पॉइंट O हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस भी A है, पैराबोला है अगर, ठीक है. सो you can find out this point S dash by applying midpoint theorem. So H plus 1 by 2 is equal to 2. So H यहाँ से कितना आ जाए? 3. And K minus 1 by 2 is equal to -1. So K is equal to -1. ठीक है, तो ये पॉइंट कितना आ गया तुम्हारा? 3, -1 3, -1. ठीक है, अब ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन हमको निकालनी, पहला काम इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन. तो तुमको एक पॉइंट पता है इस पे, अब इसकी स्लोप मिल जाए तो तुम इक्वेशन निकाल सकते हो. ठीक है प्रभु जी, हमें कैसे पता ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है? डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस. अच्छा, ये एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में से कोई भी नहीं है? नहीं, ये पैराबोला की एक्सिस है ना. अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला. सो नाउ द स्लोप ऑफ द एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्सिस की स्लोप निकाल लो, y2 minus y1, मतलब 1 plus 2 upon 2 minus 1, so that is 2. स्लोप ऑफ द एक्सिस इज 2, तो डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप कितनी हो जाएगी? m2 is equal to -1 by 2. -1/2. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे ना प्रभु जी? हाँ, सो तुम्हारा पॉइंट 3, -1 and slope is -1 by 2. So y minus y1 means y plus 1 is equal to -1 by 2 x minus x1. Okay, so you get 2y plus 2 is equal to minus x plus 3. So x plus 2y minus 1 equal to equal to 0. 0. So this is the equation of your डायरेक्ट्रिक्स. अब ये डायरेक्ट्रिक्स की तुमको इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन है तुम्हारी x plus 2y minus 1 equal to 0. नाउ यू अप्लाई द कंडीशन ऑफ पैराबोला. अगर ये पॉइंट है कोई P, इफ इट इज लेट्स से x, y या h, k, so this distance PM is equal to PS. Both distances are equal. So PM is equal to कितना हो जाएगा? H plus 2k minus 1 upon under root 5. Okay, this is PM, and PS is equal to H minus 1 whole square plus k plus 1 whole square under root. Okay, so now you equate both of them, square them and equate both of them, so you will get the equation of parabola. Is this clear? किसी को डाउट है इसमें? If anyone wants to ask something, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो.
अगर प्रभु जी हम उससे लेटिस रेक्टम वाले से करते तो मतलब एक ही पॉइंट की इक्वेशन कैसे आती? हाँ, लेटस रेक्टम इज ए स्पेसिफिक पॉइंट ना, लेटस रेक्टम तो ये इस पॉइंट की पर्टिकुलर कंडीशन है। लेटस रेक्टम के केस में देखो क्या हो रहा है, ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, दिख रहा है? हाँ प्रभु जी। तो बाकी सारे पॉइंट्स में तो रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, तो रेक्टेंगल तो एक स्पेशल केस हो गया ना। नहीं तो प्रभु जी उसकी भी तो इक्वेशन आएगी नहीं कुछ तो। इक्वेशन वो आएगी पर वो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं करेगी। सारे कैसे पॉसिबल है सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना, क्योंकि लेटस रेक्टम में हम क्या कंडीशन मान रहे हैं कि ये जो पी एस है ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। लेटस रेक्टम की ये कंडीशन है, पी एस इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। पर बाकी सारे पॉइंट में ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है ना। यहाँ पे अगर पी यहाँ पे आएगा तो पी एस क्या परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये स्पेशल पॉइंट है, ये बाकी सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ओके ओके। सो we'll take another question। बाकी इसके आगे मैं जो क्वेश्चन है टॉपिक प्रैक्टिस 1 से करा रहा हूँ। यू कैन डू दिस असाइनमेंट नाउ। टॉपिक प्रैक्टिस 1 of parabola। One last question we'll do। This came in ISC 2014। So it says that find the equation of parabola। Find the equation of parabola with latus rectum joining points। With latus rectum joining points (4, 6) and 4, -2। 4, 6 and 4, -2। So what is given here, if you try to understand, this is your parabola, this is the axis of parabola, okay, and this is the focus, and latus rectum joining. So latus rectum is perpendicular to axis passing through focus, so this is latus rectum. So these points are given, latus rectum joining points, these end points, these are called latus rectum joining points. So one point is given 4, 6 and one point is given 4, -2. Okay, so it is clear, if let's say this point is L and this is L dash, okay, L and L dash, then S yani focus, it is midpoint of L and L dash. Clear? Yes, brother. Focus is midpoint of L and L dash. So you can find out the coordinates of focus. So focus will be 4 + 4/2, 6 - 2/2। तो ये तुम्हारा फोकस हो जाएगा। तो S = 4, 2। ठीक है? प्रभु जी हमें पैराबोला की इक्वेशन के लिए चाहिए क्या क्या होता है? हाँ, व्हाट आर यू आस्किंग? प्रभु जी अगर हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो क्या क्या चाहिए? तो उसे पैराबोला की अगर तुमको इक्वेशन निकालनी है तो तुम्हें PS चाहिए और PM चाहिए, दो चीज चाहिए। PS, P तो जनरल पॉइंट है, तो एक वो तो x, y, वो तो तुमको नोन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? S यानी कि फोकस चाहिए और M यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अब ये तुम कैसे भी निकाल सकते, चाहे तो लाइन की इक्वेशन से तुम निकालो या फिर अगर डायरेक्ट
कोई मेथड है जिससे डायरेक्ट्रिक्स से किसी भी जनरल पॉइंट की डिस्टेंस निकल आए तो उस मेथड से निकाल सकते तो मतलब प्रभु जी अगर सारे टाइप के क्वेश्चन में अगर पैराबोला की इक्वेशन निकालनी होगी तो पीएस और पीएम ही पता होना चाहिए। हैं। हाँ, पीएस और पीएम, ठीक है। ठीक। अब अगर तुमको स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले से हमने निकाली हुई है तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो अगर तुमको ए पता है, ठीक है, ए पता है और ये पता है कि ये वर्टेक्स इसका ओरिजिन है, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल, अगर ए 2 है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, you can directly write. हाँ ऐसे तो So नहीं लाएगी जनरल। this is because you have already using the standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो डिराइव ही इसी से हुआ है, PS इज इक्वल टू PM से, PS इक्वल टू PM किया तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म उससे डिराइव हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर ले रहे हैं डेरिवेशन। Okay, so now you see you've got this focus 4,2. So now you have a choice, you can do it in any ways. This distance is clearly 4,2, यानी कि अब देखो ये फिगर कैसे बन रहा है। फिगर कैसे बन रहा है, दिस इज योर, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। ओके, 4,-2 कहाँ पे होगा, ये तुम्हारा 1 2 3 4, दिस इज 4 -1 -2, तो एक एंड तो ये हो गया 4,-2, एक एंड ऊपर हो गया 4,6, this is 4,-2, and the focus is at, यहाँ पे मान लो 4,2, ये तुम्हारा फोकस है, यानी कि यही तुम्हारी एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के, ये एक्सिस होगी। तो इसमें हमें ये तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका मुंह किस तरफ है। बिल्कुल पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा। नहीं प्रभु जी वो तो राइट की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी। राइट की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है। अच्छा, find the equation of joining point, this focus is given. Okay, you are saying कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। सही कह रहा हूँ ना प्रभु जी? ओके, सो लेट्स सी, तो उस हिसाब से दो इक्वेशन आनी चाहिए। सो ए कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये 6 है, ये 2 है, तो ए इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 हो गया। ए अगर 2 है तो डायरेक्ट्रिक्स ए या तो इधर होगा फोकस, तो इधर डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, या फिर इधर डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो वर्टेक्स के पॉइंट क्या हो जाएंगे, 4, 2 units this side. So vertex can be 2, 2 or 6, 2.
ठीक है, या तो 2 यूनिट इधर या 2 यूनिट इधर, क्योंकि a इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, 2,2 या 6,2। तो ये हो गया तुम्हारा वर्टेक्स। तो इक्वेशन कैन बी y -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इज 2 इंटू x। शिफ्टिंग कहाँ पे हुई है? 2,2 पे, यानी कि x प्लस 2, x माइनस 2। तो एक इक्वेशन ये हो गई y -2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8x -2। या फिर इसका ठीक उल्टा, फोकस दिस साइड, sorry, vertex this side. So y -2 whole square is equal to minus times Yeah. 8x Into minus minus 6. Okay, so these are the two equations possible according to this. अब प्रभु जी, इसमें जो हमने वर्टेक्स 2 यूनिट कम कर दिया, वो तो जब 2 यूनिट कम हो सकता है ना, जब जो पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। हाँ, तो वो है अगर उसको परपेंडिकुलर है। कैसे हमको पता चला? क्योंकि ये 4 देखो कॉमन है ना, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैराबोला की एक्सिस। ये जो लैटस रेक्टम है, दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, क्योंकि 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है। ओके, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली निकाल लिया। जी ब्रो। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता था? दूसरा मेथड ये हो सकता था कि तुम इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालते, वो भी ऐसे ही होता। ये तुमको फोकस मिला, फोकस से तुमको ये पॉइंट मिलता। ठीक, और जो लेटस रेक्टम है उसके पैरेलल है तो उसकी स्लोप मिल जाती। हाँ, ठीक है। सो दिस वाज गुड ऑब्जर्वेशन दैट यू विल गेट 2 पैराबोलास, क्योंकि तुमको ये 2 एंड पॉइंट्स दिए थे, तो इससे पास होते हुए 2 पैराबोला बन सकते हैं। एक तो एस फेसिंग लेफ्ट साइड and one facing right side. Okay, so these 2 parabolas are possible and having the same axis and same focus. Okay, so we'll end here. Now you can complete this assignment, topic practice 1. Tomorrow we'll start ellipse. Hare Krishna. हरे कृष्ण ब्रो।